Hello, good morning, friends. Today we will discuss the topic grievance handling procedure. Here we will cover the objective or need of establishing this grievance handling procedure. Further, what are the steps of a grievance handling procedure? Okay, as we know, grievance is a particular discontent or dissatisfaction between the employee or employee and employer और वर्कमैन एंड वर्कमैन. ओके, किसी भी वर्कमैन एम्प्लॉइज या एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में जो भी डिससेटिस्फैक्शन या कोई भी प्रॉब्लम होती है, सो दैट इज कॉल्ड द ग्रीवेंस. ओके, और इसके जस्ट पहले मैंने देखा कि अगर ग्रीवेंसेस है, देयर आर सम ग्रीवेंसेस, सो इफेक्ट ऑफ द ग्रीवेंस मीन्स if there is grievance inside the industry, then what is the effect on the managers, productions and employees? All the things are affected. Okay, productions quality become low, productivity quality becomes low, increasing in the wastage of material, spoilage, leakage of machinery, increase in cost of productions per unit. On employers, अगर employers की बात करते हैं तो employers क्या करता है, जो भी एम्प्लॉई है, दैट एम्प्लॉई स्टार्ट्स टू डू एब्सेंटीज, वो आना बंद कर देता है. उसका जो कुछ कमिटमेंट, सिंसियरिटी या पंक्चुअलिटी है इंडस्ट्रीज के लिए, खुद के ऑर्गेनाइजेशन के लिए, दैट इज रिड्यूस्ड. इंक्रीजिंग इंसिडेंस ऑफ एक्सीडेंट्स reduces the level of employee morale, etc. Okay, so these are the effects of the grievance. Okay, so for this we need some procedure, how to solve the problem, how to solve the discontaminant, how to remove this. Okay, so for removing this discontamination or the dissatisfaction, some rule handling procedures are given. So here we will see what are the handling procedures. First, why there is a requirement of the grievance handling procedure. So the first point, to clarify the nature of the grievance. सबसे पहली चीज, सबको प्रॉब्लम होती है. अब प्रॉब्लम है क्या, लॉजिकल है या इलॉजिकल है, किस टाइप की प्रॉब्लम है, सही है या गलत है, ये भी नहीं पता. प्रॉब्लम का नेचर क्या है, कुछ नहीं. तो अगर हम ग्रीवेंस हैंडलिंग प्रोसीजर हमारे पास में होगा, सो द एम्प्लॉय के बीच का जो भी प्रॉब्लम है, it will be easy to find out the nature of that problem. So problem का nature क्या है? To enable the employee to air his grievance, if we have a proper grievance handling procedure, we will be able to solve the problem. That's why we need a proper grievance handling procedure. Next is for investigating the reason of dissatisfaction. Okay, if there is dissatisfaction or the problem है वहाँ पे, तो किस टाइप के प्रॉब्लम है, क्या रीजन है, व्हाट आर द रीजन बिहाइंड दैट, सो वी कैन इजीली इन्वेस्टिगेट. ओके, आसानी से उस चीज को हम इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं. ये सब कुछ आपका क्या है, अगर ग्रीवेंस हैंडलिंग प्रोसीजर, if we have a proper grievance handling procedure, so we can easily investigate or find the reason of dissatisfaction. Next is to take appropriate action and ensure that promises are kept. To take appropriate action and ensure that promises are kept. Okay. To obtain a speedy resolution to the problem. Okay. So ये क्या कर रहा है, if we have a proper resolution method or the grievance handling procedure, so easily, quickly we can find the problem. अगर देखें इंडस्ट्री में किसी टाइप में कोई डिससेटिस्फैक्शन हुआ, तो अगर जितनी जल्दी से जल्दी हम उसके नेचर को फाइंड आउट कर लेंगे, किस टाइप का डिससेटिस्फैक्शन है. कभी कभी होता है कि प्रॉब्लम्स निकल के बाहर नहीं आती, अंदर ही अंदर प्रॉब्लम चलती रहती है, एक रिवोल्ट का फॉर्म ले लेती है, कुछ भी होता है.
तो इनिशियल स्टेज पे किस टाइप का डिससेटिस्फैक्शन हो रहा है, अगर वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ये कोई प्रॉब्लम आ गई है कहीं, तो इफ हमारे पास में प्रॉपर हैंडलिंग प्रोसीजर होगा तो हम बड़ी आसानी से उस चीज को सॉल्व कर सकते हैं. सो दैट्स व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ एस्टैब्लिशिंग द ग्रीवेंस हैंडलिंग प्रोसीजर. ओके, नेक्स्ट इज टू इन्फॉर्म द एम्प्लॉई ऑफ हिज और हर फाइट. जो भी एम्प्लॉय हैं उनका जो भी राइट है, दैट इज टू इन्फॉर्म द एम्प्लॉय ऑफ हिज हर राइट. तो जो भी एम्प्लॉय होंगे उनको प्रॉपरली इस चीज का इंफॉर्मेशन होगा कि उनके क्या राइट है. ठीक है, क्योंकि ये सही प्रॉब्लम आती है. नेक्स्ट, if we want to make a grievance handling procedure, so what should be the step in the grievance handling procedure? यहाँ पे पर्टिकुलर दिया हुआ है acknowledge dissatisfaction. फर्स्ट स्टेप क्या है, जो भी डिससेटिस्फैक्शन है, प्रॉब्लम्स हैं, जिस तरीके से ये प्रॉब्लम आ रही है, तो इस चीज को फाइंड आउट करना. जैसे अभी आप एक्टिव में लिखा कि टू क्लेरिफाई द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम, द सेम थिंग्स आर हियर. टू एक्नॉलेज द डिससेटिस्फैक्शन. ओके, सेकेंड, प्रॉब्लम डिफाइन, देन डिफाइन द प्रॉब्लम कि वास्तव में प्रॉब्लम है क्या. Get the facts, finding all the facts. We have not to go through the fictions. ऐसा नहीं है किसी ने कोई बात ऐसी बोल दी, वो प्रॉब्लम है, वो आगे मैटर बन गया, ऐसा नहीं होता है. We should go, we should have proper fact. Okay. Next is analyze and decide. Analyze and decide. Analyze करना प्रॉब्लम्स को, फिर डिसीजन लेना, then follow. So basically these are the 5 steps for grievance handling procedure. Get all the information related to the grievance. It should be genuine, not affixing. Acknowledge dissatisfaction में ये point आता है. First point to get all the information. Acknowledge this and defining the problems में ये आता है. ठीक है. Then it must be promptly communicated to the concerned employee. अब जिसको प्रॉब्लम है, पता चला जिससे डिससेटिस्फैक्शन, उसको तो पता ही नहीं है, बाकी लोग उस पर जो है पूरी प्रॉब्लम बना के घूम रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए. तो फॉर दैट इट मस्ट बी प्रॉम्प्टली कम्युनिकेटेड टू द कंसर्न फैकल्टीज. नेक्स्ट, द प्रॉब्लम शुड बी डिफाइंड प्रॉपर्ली. समटाइम्स रॉन्ग कंप्लेन इज गिवन. कोई गलती से गलत कंप्लेन आ जाती है कि वास्तव में कुछ होता नहीं है. तो बाय इफेक्ट लिसनिंग मैनेजर कैन फाइंड आउट द वैलिडिटी ऑफ द कंप्लेन. अब ऐसा नहीं है हमें एग्जैक्ट क्या कंप्लेंट्स है, सही राइट कंप्लेंट्स वहाँ पे पहुँचना चाहिए. ऐसा नहीं है कि आ गया ये सही चीज़ नहीं है, राइट इंफॉर्मेशन है, राइट कंप्लेन है, रॉन्ग कंप्लेन है, ये सारी चीज़ें अगर हमें फाइंड आउट करनी होती है तो इसके लिए हम प्रॉपर क्या लेते हैं, एडवांस हैंडलिंग प्रोसीजर का, तो इजीली वी कैन फाइंड दैट. ओके, नेक्स्ट आता है प्रॉपर्ली एनालाइज ऑल द रिलेवेंट फैक्ट एंड इंसिडेंट्स एंड देन डिसाइड एनी कंक्लूजन्स. ओके, अगर हम देखें तो प्रॉपरली एनालाइज ऑल द रिलेवेंट फैक्ट्स एंड इंसिडेंट्स एंड देन डिसाइड एनी कंक्लूजन. प्रॉपरली हम क्या कर सकते हैं, एनालाइज करें रिलेवेंट फैक्ट को एंड देन डिसाइड एनी कंक्लूजन. कोई भी कंक्लूजन लेना तब फिर हम डिसाइड करते हैं. ठीक है, तो ये सारे हमारे स्टेप होते हैं ग्रीवेंस हैंडलिंग प्रोसीजर. फर्स्ट स्टेप जैसे कि अगर हम देखा जाए तो क्या है, हमारे ग्रीवेंस हैंडलिंग प्रोसीजर में क्या होना चाहिए, ओपन डोर पॉलिसी होना चाहिए. दैट मीन्स 3 टाइप के यहाँ पे प्रोसीजर हैं. फर्स्ट क्या है, ओपन डोर पॉलिसी, देन मॉडल ग्रीवेंस प्रोसीजर, देन स्टेप लैडर प्रोसीजर. ओपन डोर पॉलिसी जैसे ओपन द डोर इज ओपन फॉर यू. इसका मतलब क्या हुआ कि जो मैनेजर है, जो HR है, जो वहाँ का ऑर्गेनाइज ऑनर है, वो क्या है, उसके यहाँ ओपन डोर पॉलिसी होना चाहिए. कोई भी एम्प्लॉई है, किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम है तो डायरेक्टली जाके अपने चीफ बॉस से मिल सकते हैं, उससे बात करें और अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताए एंड सोल्यूशन उसका प्रॉब्लम का मिले. तो सच टाइप ऑफ पॉलिसी नोन रहता है ओपन डोर पॉलिसी. नेक्स्ट क्या आता है, स्टेप लैडर प्रोसीजर. स्टेप लैडर प्रोसीजर का मतलब क्या है कि टू एम्प्लॉय विद ग्रीवेंस हैज टू प्रोसीड स्टेप बाय स्टेप अनलेस ही इज एबल टू रेड्यूस हिज ग्रीवेंस.
अब जो एम्प्लॉई ऐसा नहीं है कि सीधे चला गया ऊपर ऑनर से मिल गया, जैसा स्टेप बाय स्टेप उसके यहाँ पे जो भी पोस्ट हैं, उनके जो सीनियर्स हैं, बॉस हैं, जो भी उनके यहाँ का एक डिग्निटी का क्या वो सीक्वेंस है, उस बेसिस से वो अपनी प्रॉब्लम को लेके जाए जब तक कि उसे अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ना मिले। सो ये आपका जैसे सीढ़ियाँ, स्टेप लैडर प्रोसीजर, मतलब कि लेडर सीढ़ी देखा है, एक के बाद आप सीधे नीचे टॉप ग्राउंड फ्लोर पे टॉप फ्लोर पे नहीं पहुँच सकते हैं, आपको 1 by 1 सारे लेटर से होकर पास होना पड़ेगा। तो दिस इज द कॉल्ड स्टेप लैडर प्रोसीजर। ओके, द एम्प्लॉय विद ग्रीवेंस हैज टू प्रोसीड स्टेप बाय स्टेप ऑन द थिंग्स एबल टू नोटिस हिज ग्रीवेंस। नेक्स्ट इज द मॉडल ग्रीवेंस प्रोसीजर। यहाँ पे पर्टिकुलर एक बना हुआ है कि वॉलंटरी आर्बिट्रेशन, चीफ एग्जीक्यूटिव मैनेजर, ग्रीवेंस कमेटी, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेटिव, एग्रीविड एम्प्लॉय, ये सारी चीज़ें हैं। कोई भी स्टेटमेंट आपका ग्रीवेंस है, ये आपका सोल्यूशंस कितने दिन में फाइंड आउट करके आपको दे देंगे आप कैसे हैं। ठीक है, नॉट सेटिस्फाइड देन गो थ्रू दिस। फर्स्ट द एग्रीव्ड एम्प्लॉय है, he will provide the solution within 48 hours. If he is not able to give the solution within 48, then departmental representatives. If you are not satisfied, then go to the head of department, and within 3 days you will find the resolution of your problem. After that, if the head of department is not able to satisfy you, then make a grievance committee and find the solution within 7 days. Then chief executive manager, 3 days voluntary arbitration. So these are the different ways through which a proper grievance model are prepared for finding the solution. Okay, so thank you all about the grievances, and thanks to all for listening.